we go to the miracles of your mind. अभी देख लिया जी, हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा, अभी हमारा मिरेकल्स ऑफ योर माइंड, जो हमारे माइंड के अंदर जो पावर है ना, जो ये मिरेकल्स क्रिएट कर सकता है. मैजिक इज छोटा वर्ड, मिरेकल इज चमत्कार. तो जो वो चमत्कार कर सकता है, वो वाली पावर हमारे सभी के अंदर है. कोई भी इंसान है, भगवान ने हम सभी को एक ही तरह का दिमाग देके पैदा कर रखा है, हमें दुनिया में भेजा हुआ है, इस दुनिया में रूल करने के लिए भेजा हुआ है. रूल योर बॉडी एंड रूल योर माइंड, है ना. ऑलवेज मेक योर बॉडी द स्लेव ऑफ योर माइंड, और माइंड को मास्टर करो, है ना, हमेशा. तो इस तरीके से, वरना आप जब इसको बार बार एक्सरसाइज करोगे, बार बार जब अपने दिमाग को पॉजिटिविटी के साथ आप उसको मैरिनेट करोगे, तो क्या होगा ना, आपका बॉडी विल एम्बॉडी दैट. आपके बॉडी के अंदर आपके बॉडी ही उस तरीके से एक्ट करने लग पड़ेगा, जो कि हमने वहां पर पढ़ा था, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक में पढ़ा ना हमने, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, कि आपका जो भी थॉट है ना, योर बॉडी स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक दैट आफ्टर सम टाइम. आपने 21 दिनों तक प्रैक्टिस करी, आपने 33 डेज तक करी, आपने 66 डेज तक करी, वो आपका स्किन बन गया, वो आपका फिर जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं. शिवानी फ्रॉम सिंगापुर रीडिंग फॉर अस टुडे. शिवानी. Morning. The alcoholic learns that whatever thought he anchors his mind upon, the latter magnifies. If the alcoholic engages his mind on the concept of freedom, that is freedom from the habit, and peace of mind, and if he keeps focused on this new direction of his attention, he generates feelings and emotions which gradually emotionalize the concept of freedom and peace. Whatever idea is emotionalized is accepted by the subconscious mind and brought to pass. The alcoholic must realize that something good can come out of his suffering. He has not suffered in vain. However, what good is it to continue to suffer? To continue as an alcoholic is only to bring about mental and physical deterioration and decay. Begin to say no to the urge now. Realize that the power of your subconscious mind is backing you up. Even though you may be seized with melancholia and the shakes, begin to imagine the joy and freedom that is in store for you. This is the law of substitution. Your imagination took and peace in mind. You will suffer a little bit. You to the bottle. Let it take you now to freedom, but it is for a constructive purpose. You will bear it like the mother in the pangs of childbirth, and you will likewise bring forth a child of the mind. Your subconscious mind will give birth to sobriety. Your thinking controls you, whether you know it or not. You are now fully aware of the fact that your subconscious mind accepts without question the thoughts you impress upon it. You can now begin to control your life. To discipline your mind means to think constructively and harmoniously. One time, I read an article about Goethe. He was wont to hold imaginary mental conversations with friends. For example, he would get still and quiet and imagine one of his friends answering him in the way he wanted, with characteristic gestures and tone of voice. He solved many of his problems that way. So can you. Many have asked me about their reason or cause for drinking to excess. There are, of course, many reasons. It may be that a man is resenting his wife or his job or his employer. Maybe he is jealous or he has an inferiority or rejection complex. I've discovered in treating alcoholics that there is nearly always a deep sense of guilt. I'm now thinking of a married man with 4 children, supporting and secretly living with another woman during his business trips. He was ill, nervous, irritable, cantankerous, and could not sleep without drugs. He had pains in numerous organs of his body,
which doctors could not diagnose. He was a confirmed alcoholic when I saw him. The reason for his periodic sprees was a deep, unconscious sense of guilt. He had violated the ancient code and this troubled him. The religious creed he was brought up on was deeply lodged in his subconscious mind. He drank excessively to heal the wound of guilt. Some take morphine and codeine for severe pains. He was taking alcohol for the pain or wound of the mind. It is the old story of adding fuel to the fire. He listened to the explanation of how his mind worked. He faced his problem, looked at it, and gave up his dual role. He knew that his drinking was an unconscious attempt to escape. The hidden cause lodged in the subconscious had to be eradicated. Then the healing followed. When he began to look at his problem in the light of reason, it was dissipated. He began to use this treatment 3 or 4 times a day. My mind is full of peace, poise, balance, and equilibrium. The infinite power lies stretched in smiling repose within me. I'm not afraid of anything in the past, the present, or the future. Infinite intelligence leads, guides, and directs me in all ways. I now meet every situation with faith, poise, calmness, and confidence. I'm now completely free from the habit. My mind is full of inner peace, freedom, and joy. I forgive myself, then I am forgiven. Peace, sobriety, and confidence reign supreme in my mind. He repeated this frequently, knowing what he was doing and why he was doing it. Knowing what he was doing gave him the necessary faith and confidence. I explained to him that as he said these statements out loud, slowly, lovingly, and meaningfully, they would gradually sink down into his subconscious. Like seeds, they would grow after their kind. I explained to him that his subconscious mind was like a garden. By planting lovely seeds, he would reap a wonderful harvest. It is the nature of an apple seed to bring forth an apple tree. These truths, which he concentrated on, went in through his eyes. His ears heard the sound. The healing vibration of these words reached his subconscious mind and obliterated all the negative mental patterns which caused all the trouble. Light dispels darkness. The positive thought destroys the negative. He became a transformed man within a month. Of Let's course, read as this you know- much, Shivani, है ना? इतना Okay. पढ़ लेते हैं. Thank you so much, and it's been Thank long you. that you read now. Thank you so Yes. much for reading so beautifully. Thank you Thank so you. much. Keep filling the form, यार. So yes. So now हम लोगों ने यहाँ पर we read about a person who it's about alcoholism कि alcoholism को कैसे हम लोग अपने लाइफ से ये वाली जो हैबिट है इसको इरेडिकेट कर सकते हैं. इसके बारे में डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने पिछली बुक में बहुत अच्छे से बताया था. एंड यहाँ पर भी डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं इट्स जस्ट नॉट द अल्कोहलिज्म थिंग, वॉट एवर इट इज, है ना. अब जो भी चीजें हैं हमारी लाइफ में जिसको हम लोग, कोई भी एक हैबिट है जिसको हम लोग बार बार यूज करते हैं, लाइक वॉट एवर, जस्ट सपोज इफ इट इज अ शुगर एडिक्शन, और वही मैम ने जो बताया था कि अगर आपको सोशल मीडिया का एडिक्शन हो चुका है, सोशल मीडिया एडिक्शन इज क्रिएटिंग सच हेल्थ हैजर्ड्स ना, जस्ट नॉट योर माइंड. आपकी जो कान में हम लोग जो ब्लूटूथ डिवाइसेस वगैरह यूज करते हैं, उससे करते हैं, वी आर गोइंग मोर टुवर्ड द डेफनेस, है ना. बहरापन आता जा रहा है. देन जो हमारे टेनिस एल्बो वगैरह हैं वो होते जा रहे हैं, फिंगर्स हमारे प्रॉब्लमैटिक होते जा रहे हैं. तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं चीजों को, चाहे वो सोशल मीडिया हो. अगर शुगर का इंटेक हम लोग अब ज्यादा कर रहे हैं तो शुगर क्या कर रहा है? शुगर जो है हमारी बॉडी में ग्लाइकेशन करता है, जिसका मतलब वो एजिंग को और भी ज्यादा इंड्यूस कर रहा है. आप जब पैदा होते हो तब आप एक अलग तरीके के ऑर्गन के साथ पैदा होते हो, जैसे आपके हार्ट होते हैं, आपके लंग्स होते हैं, सारे के सारे छोटे छोटे बेबी के ना सारे पिंक 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 होते हैं.
बट आफ्टर योर बर्थ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द इनटेक ऑफ मोर एंड मोर शुगर इनटू योर फूड, क्योंकि शुगर के साथ बाकी सारी चीजें तो, जितनी भी नेचुरल चीजें बनी है ना, वो तो शुगर को लेकर ही बनी है, उनके में शुगर तो ऑलरेडी है। बट द रिफाइंड थिंग्स दैट वी आर हैविंग ना, उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी इट्स गेटिंग कुक्ड, अंदर से तो उसकी कुकिंग चल रही है ना, वो पक रहे हैं हम लोग अंदर से, है ना, वो ग्लाइकेशन हमारा चल ही रहा है। तो क्या कर रहा है, एजिंग फास्ट होती जा रही है हमारी, है ना। अब वो जो जापान के लोग हैं वो 115 साल जब वो जी रहे हैं, क्यों? क्योंकि दे हैव सो गॉट सो मच कंट्रोल ओवर द शुगर। तो अगर हम अपने उस पर्टिकुलर हैबिट से छुटकारा पाना चाहते हैं कि शुगर इनटेक बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे एडिक्शन हो गया है शुगर का, आई कैन नॉट, आई गेट दोस शुगर पैंग्स, जो आपको शुगर पैंग्स हो रहे हैं, आपको बहुत ही ज्यादा लग रहा है कि आई नीड टू हैव दैट चॉकलेट और ये आइसक्रीम खानी है मुझे, है ना, वो सब जो हो रहा है उसको भी आप इसी तरीके से, इतना अच्छा जो इन्होंने एफर्मेशन दिया है ना, उसके साथ आप उस वाली प्रॉब्लम को भी डील कर सकते हो। एनी फॉर्म ऑफ एडिक्शन वर्क्स, इसमें जो है आपका ये एफर्मेशन, इट विल वर्क इन एनी काइंड ऑफ एडिक्शन दैट यू हैव माइट बी हैविंग, राइट। सो कैसे करना है इन चीजों को, अब डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि इफ समवन इज अल्कोहलिक, तो उसको जो है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन वैसे ही अल्कोहल लेना शुरू कर देता है। अब सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा ही होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्टिल द पर्सन इज स्मोकिंग। बॉटल्स जो है हमारे, जो जितने भी ये होते हैं, शायद उनमें भी लिखा होता होगा कुछ ना कुछ कि इट्स इंजूरियस, एंड वी ऑल नो फ्रॉम द चाइल्डहुड, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, मीडिया में हम लोग देखते हैं कि भाई अल्कोहलिज्म जो है वो ठीक नहीं है, बट स्टिल समवन इज, इफ समवन इज गोइंग, देन देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट, है ना। वो रीजन क्या है, उस रीजन को पकड़ो। हो सकता है उस पर्सन के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, जो कि वो पास्ट कंडीशन माइंड है ना उसका, वो दैट पर्सन मे बी लोनली फ्रॉम इनसाइड। सी, बीइंग अलोन एंड बीइंग लोनली इज डिफरेंट। सॉलिट्यूड में क्या करते हो ना आप, सॉलिट्यूड में अपने आप को डिस्कवर करते हो, लेकिन लोनलीनेस जो होता है उसमें आप खो जाते हो, यू गेट लॉस्ट ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर माइंड। तो आप यू गो एंड हैव अ ड्रिंक उस टाइम पे, कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया तो मुझे पीना है, मुझे खुशी है तो मुझे पीना है, तो डू नॉट फाइंड अ रीजन टू ड्रिंक। वो अल्कोहल जो अल्कोहलिक जो होता है, ही ऑलवेज फाइंड्स अ रीजन टू, दुख हो गया तो भी पीना है, गम खुशी हो गई तो भी पीना है, वट एवर इट इज, जो भी चीजों है। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, यस आवर लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, बट सेलिब्रेशन ऑलवेज डजंट मीन कि आप लोग मतलब अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल यूज करके आप उसको सेलिब्रेट करो। सो आपका जो बॉडी है वो सिर्फ आपका है, रिव्यर दैट, उसके कारण जो है, उसके कारण को समझो कि वाई यू आर फाइंडिंग दैट प्लेजर इन द सिप ऑफ द अल्कोहल, क्यों आपको वो प्लेजर लग रहा है। या अगर कोई पर्सन, जैसे मान लीजिए हेट्रो सजेशन की जहां पर बात होती है, दिस एफर्मेशन जो इतना अच्छा सा एफर्मेशन यहाँ पर डॉक्टर मर्फी ने दिया है, वो एफर्मेशन सिर्फ हमारे लिए नहीं है। अगर हम लोग इस चीज से सफर करें तो हम लोग इसको यूज कर ही सकते हैं, बट इफ समवन फ्रॉम आवर फैमिली इज ऑल्सो अल्कोहलिक और उनको किसी चीज का एडिक्शन है, हम उनके उस एडिक्शन को ठीक करना चाहते हैं, इन दैट केस जहां पर भी आई है ना, आई माई आ रहा है, उसको हम लोग ही शी में कन्वर्ट कर लेंगे, उनका नाम लिख के कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो ये वाला एफर्मेशन उसके लिए भी काम करेगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इसको कहते हैं हेटेरो सजेशन। जब हम किसी और के लिए प्रेयर करते हैं, कोई एफर्मेशन लिखते हैं किसी और के लिए, उसको कहते हैं हेटेरो सजेशन। हम लोग आज तक अपने, जो भी मान लीजिए हमारा फैमिली मेंबर है, जैसे मान लीजिए वो अल्कोहलिक है, तो उनको, वो तो शराबी है, उसने तो शराब में सारा पैसा उड़ा देना है, उसने तो ये करना है वो करना है, तो ये हमने आज तक हमने ये हेटेरो सजेशन दिया था, इफ वी आर नॉट ड्रिंकिंग टू मच, हम लोग मान लीजिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पर्सन को, चाहे वो ड्रिंक कर रहा हो, चाहे वो बच्चा है, मान लीजिए पढ़ नहीं रहा है वो, तो उसको बोल बोल के, ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये किसी काम का है नहीं, अभी जाके फेल हो जाएगा, है ना। इस तरह के हेट्रो सजेशन हमने दिए थे, लेकिन अब हमारा माइंडसेट क्या हो जाएगा, हमारा हेट्रो सजेशन भी ऐसा हो जाएगा कि इन द फेवर ऑफ दैट पर्सन, कि वो ऐसा ऐसा हो रहा है कि नाउ दैट पर्सन इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द हैबिट ऑफ गैम्बलिंग। जस्ट सपोज इफ गैम्बलिंग इज द हैबिट, गैम्बलिंग इज ऑल्सो सच अ बिग हैबिट, उसके कारण लोग बहुत पैसा लूज कर लेते हैं। वट एवर द एडिक्शन इज, यू कैन राइट अबाउट दैट, थिंक अबाउट दैट एडिक्शन, है ना। और उसके लिए आप ये एफर्मेशन जो है, डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं सबसे अच्छी बात होती है रात को सोने के टाइम करो, लेकिन उन्होंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में ये बोला हुआ था कि दिन में 3 बार अगर आप कर सकते हो तो उससे ज्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। दिन में 3 बार अपने अल्फा स्टेट ऑफ माइंड को इंड्यूस करो, डीप ब्रीदिंग के साथ, बेली ब्रीदिंग के साथ, अपने अल्फा स्टेट ऑफ माइंड को इंड्यूस करके, फिर हमने उसमें अपना ये वाला एफर्मेशन डालना है। देख के पढ़ो, क्योंकि इतना बड़ा एफर्मेशन तो शायद हम लोग याद नहीं कर पाएंगे अभी, देख के करो। और इसके अंदर से भी ना छोटे छोटे बहुत अच्छे अच्छे एफर्मेशन निकल के आ रहे हैं,
जैसे ये है कि पीस, सोब्राइटी एंड कॉन्फिडेंस वाला, पीस, सोब्राइटी एंड कॉन्फिडेंस रेन सुप्रीम इन माई माइंड, दिस कैन बी वन एफर्मेशन। ये वाला एक सिंगल एफर्मेशन हो सकता है कि माई माइंड इज फुल ऑफ इनर पीस, फ्रीडम एंड जॉय, है ना, ये वाला हो सकता है। तो इस तरीके से एफर्मेशन इस तरह से ढूंढ ढूंढ के हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर जब हम लोग अल्कोहलिज्म की बात कर रहे हैं या किसी भी एडिक्शन की बात कर रहे हैं, उस एडिक्शन से हम लोगों को, कोई किसी भी एडिक्शन में हम लोग जब पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं जब कोई ना कोई अंदर से कोई प्रॉब्लम या कुछ पास्ट कंडीशनड माइंड हमारा होता है ना, उसके बारे में तब करते हैं हम लोग। कुछ लोनलीनेस हो, जैसे मान लीजिए वो अभिमान पिक्चर में दिखाया था ना अमिताभ बच्चन को कि उसकी वाइफ की बहुत ज्यादा उन्नति हो रही थी, वो सिंगिंग में बहुत आगे जा रहा था उनका करियर, तो फिर उस चीज का डिप्रेशन मान लिया, उस चीज को उन्होंने उस चीज का दुख बनाने लग पड़ना, और फिर वो अल्कोहलिज्म शुरू कर दिया था उन्होंने। सो देयर इज ऑलवेज अ रीजन, है ना। जैसे मान लीजिए जो स्ट्रैंडेड चाइल्ड होते हैं, है ना, जो जिनको मम्मी पापा छोड़ देते हैं या फिर उनके पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं रहता, तो ऐसा बच्चा, ऐसा पर्सन जो है, हो सकता है बचपन से ही उसको अल्कोहलिज्म की आदत पड़ जाए, कोई भी बैड हैबिट की आदत पड़ जाए, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसके प्रति भी संवेदना रखना है। if it is not me, if it is someone else in my family, in that case I'm talking about this, कि हम लोगों ने संवेदना रखना है। if it is you or anyone else, you have adopted this habit due to something in your past. Now what you have to do is you have to realize कि मैं यहाँ पर ये चीज कर रही हूँ तो इसके पीछे रीजन ये था, अब मुझे पता है कि ये चीज अच्छी है। तो ऑलवेज व्हेन यू विल बी हैविंग दैट क्रेविंग इन योर माइंड ना, तब आप डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बात याद करोगे कि ये क्रेविंग है मेरी, लेकिन मुझे इसके लिए नो कहना है, विद रीजंस नो कहना है ना, विद रीजंस जब मैं नो कहूंगी। क्योंकि अल्कोहल के लिए मेरा क्या रीजन हो सकता है कि नहीं, ये मेरे को, अगर मैं जब अल्कोहल लूंगा तो फिर ज्यादा अल्कोहल लेने से क्या हो, मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, तब अपने बिजनेस के डिसीजंस में अच्छे नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी वाइफ के साथ, या अगर वाइफ है तो अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा होगा, मैं अपने बच्चों का ठीक से केयर नहीं कर पाऊंगा। सो गिव योरसेल्फ रीजन फॉर दैट। जब आप अपने आप को रीजन दोगे ना, तो आपका माइंड विल गेट द वैलिडेशन, उसको वैलिडेशन मिल जाएगा। अदरवाइज को क्या होता था, पिया उसको प्लेजर आता था, अब उसको ये वैलिडेट, क्योंकि उसको तो पता है ना। देखो हम लोग जब अल्कोहल ले रहे हैं तो वी आर जस्ट काइंड ऑफ इंड्यूसिंग दैट स्लीपीनेस इनटू आवर माइंड। हमारा दिमाग तब उस तरीके से काम नहीं कर रहा, आप उसको डीएक्टिवेट करने की कोशिश करो, आप भुलाने की कोशिश करो, बेसिकली भूल जाओ, भुलाने की कोशिश करो। बट वन यू विल बी हैविंग दिस इन माइंड कि मेरे को तो ये इसलिए छोड़ना है, ये कारण है मेरा, और मैं नहीं पीऊंगा, आई विल से डायरेक्टली नो, चेंज दैट थॉट एंड से नो एंड से दिस एफर्मेशन। जो भी छोटा सा पार्ट, अगर याद नहीं हुआ ना, छोटा सा पार्ट आप ले लो, ये वाला कर लो आप कि My mind is full of inner peace, freedom and joy and I forgive myself. इस तरह से कर सकते हो। या peace, sobriety and confidence reign supreme in my mind. फटाफट से एक सब्स्टिट्यूट कर दो उसको एक अच्छी चीज के साथ। अगर आप देखिए लिवर की जो अल्कोहल है, इट अफेक्ट्स योर लिवर सो मच, जो है ना, तो उसके कारण आप ये सोच सकते हो कि वाओ माय लिवर इज एब्सोल्युटली हेल्दी। आपको अपने पिंक कलर के लिवर को आप देखो, आप सोचो कि हाँ मेरा लिवर जो है ना, वो एक आपकी एनएलपी टेक्निक हो गई। तो आपको जब भी वो पैंग आएगा, जो भी आपको चीज आएगा, तब आपने आपको विक्टोरियस, यू केम विक्टोरियस, सेड नो टू अल्कोहल, और आपने ये वाला एफर्मेशन बोला और आपने सोच लिया अपने दिमाग में कि वाओ मेरा लिवर जो है ना बहुत ही, उसने लिवर ने आपको थैंक यू कहा। जितनी बार आप नहीं करते हो ना, जितनी बार आपने मना किया अल्कोहल को, उतनी बार आपके लिवर ने आपको खूब सारा थैंक यू बोला। उस चीज को इमेजिन करो। इमेजिन करने से, ये सब करने से ना, फिर आपको ग्रैटिट्यूड, आपको उसमें से भी ये निकालने की कोशिश करो। जस्ट हम लोग जैसे जो भी इस जर्नी में है, हम लोग किसी ना किसी रीजन के लिए हैं यहाँ पर। अगर वो प्रॉब्लम हमारे लाइफ में नहीं आती तो शायद हम इस जर्नी में आते ही नहीं। तो अल्कोहल को भी यही सोचो कि अल्कोहलिज्म जो मैंने किया, मुझे डॉक्टर जोसेफ मर्फी के बारे में पता चला, और डॉक्टर जोसेफ मर्फी से मुझे ये पता चला ना सिर्फ मैं अल्कोहलिज्म को, मैं बाकी और चीजों को भी, और किसी बैड हैबिट से भी छुटकारा पा सकता हूँ, है ना। एंड इसके साथ साथ मैं वेल्थ बहुत अच्छा जनरेट कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छी सेहत पा सकती हूँ, मैं बहुत अच्छे रिश्ते पा सकती हूँ। तो उस अल्कोहलिज्म से भी आप एक अच्छी चीज निकालने की कोशिश करो एंड मेडिटेट ऑन दैट, जो कि हमें रॉन्डा बर्न भी बताती है कि मिस्टेक्स, जो ब्लेसिंग्स जो है ना, मिस्टेक्स आर ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, बोलते हैं ना, वो एक कपड़ा बदल के वो आपकी ब्लेसिंग ही होती है जितने भी मिस्टेक्स करनी। ठीक है, वंस यू फेल इनटू द ट्रैप ऑफ दिस अल्कोहलिज्म एंड आपके वो मिस्टेक था, बट नाउ इट हैज टर्न्ड इनटू अ ब्लेसिंग व्हेन यू हैव कम टू नो दैट दिस इज द थिंग, आई हैव टू गेट रिड ऑफ दैट, आई हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल एफर्मेशन। मैं रोज इसको करूंगी, अपने आप को 21 डेज दो,
दिन में 3 बार करो, दिन में 3 बार करके आप उसको मतलब बिल्कुल अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में करना है। 3 बार मान लीजिए दोपहर को नहीं कर पा रहे हो, बट मेक इट श्योर दैट यू डू इट एटलीस्ट 2 टाइम्स। सुबह सुबह तो करो ही और रात को सोने से पहले ये एफर्मेशन सारा का सारा बोल के रखो। और दोपहर के लिए आप एक और ट्रिक हो सकता है ना, आप अपने रिकॉर्ड कर सकते हो, आपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और अपने 2 मिनट का जब आपको लंच ब्रेक मिलता है तब आपने इसके बारे में सोच लिया और आपने ये कर लिया। कंसिस्टेंटली इसको करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसको छुटकारा ना पाओ। बिल्कुल आपको किसी भी रिहैब में जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को अलग करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से आप अल्कोहलिज्म अपना भी इराडिकेट कंप्लीटली कर सकते हो और हेट्रो सजेशन देके अपने जो भी अगर आपके लव वन है कोई उनका भी कर सकते हैं। सो दिस इज द थिंग, दिस कैन बी डन। और डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड वो जो हमारा है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन की तरह है, उसके अंदर अच्छे अच्छे फूल उगाओ, बहुत ही तरह तरह की वेराइटीज लगाओ, फॉलिएजेस होंगे, खूबसूरत खूबसूरत पत्ते होंगे, आंखों के लिए अच्छा होगा। जिस तरह आपके आंखों के लिए अच्छा ना, सबकॉन्शियस माइंड में जो एक एक गुड थॉट है वो फ्लरिश करता है। आप जो है जैसे मान लीजिए आपने घर में अगर हार श्रृंगार का पौधा है आपके घर में अगर, तो जहां पर भी वो फूल गिरेगा ना अपने आप वहीं से वो पेड़ उगने की कोशिश करता है, राइट। वहां से आपको किसी भी उसकी जरूरत ही नहीं, बीज डालने की जरूरत नहीं, अपने आप छोटे 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 प्लांट्स अपने आप उगाते हैं वहां पर, है ना, बीज से। ऐसे ही होता है सबकॉन्शियस माइंड में, आपने अच्छे गुड गुड प्लांट थॉट्स जो है वो प्लांट किए, उसके बाद से मशरूमिंग हो जाएगी और भी अच्छी अच्छी चीजों की। ना सिर्फ वो पर्टिकुलर एरिया अच्छा करेगा वो आपकी लाइफ का, बल्कि उसकी खुशबू आपकी लाइफ के चारों एरिया, सभी के सभी मेजर एरियाज में जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड ऑलवेज हार्नेस द पावर। सो जिस तरीके से जो है लाइट डिस्पेल्स द डार्कनेस, अब खूब अंधेरा कमरा है उसमें आपने रोशनी करी है तो उससे आपका अंधेरा खत्म हो गया ना रोशनी के साथ, उसी तरीके से जो आपके पॉजिटिव थॉट है वो आपके दिमाग से नेगेटिविटी अगर आपको एक पर्टिकुलर एरिया की भी है ना, वो फिर इस तरह से वो डिफ्यूज करते हैं, बाकी और ऑर्गन्स में जाती है, बाकी और एरियाज में चली जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से जो पॉजिटिविटी है वो भी इसी तरीके से, जिस तरह हम लोग दिए की रोशनी को छुपा नहीं सकते ना, उस तरह से पॉजिटिविटी का भी जो फ्लेवर है, जो रेडियंस है ना, उसको हम छुपा नहीं सकते हैं। वो आपके हर एक एरिया को इल्यूमिनेट कर देंगी। दिस इज द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, है ना। तो ये है आज का, हाँ इतना ही करेंगे हम लोग आज। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप इट वाज क्लियर टू ऑल ऑफ अस एंड thank you for listening to me. Thank you to my wonderful support, my lovely and very dear Poonam ma'am and Bharti for being always there for me. And thank you to each and every one of you. Thank you to Deepti ma'am, of course, for giving me this opportunity to study with you.